अच्छा, तो आप हैदराबाद से हैं। यस। हाउ न आपको कुछ भी नहीं आता कैसा? क्यों नहीं आता? फिर बोलो कुछ तो भी हैदराबादी में बात करते हम कैसे लग रहे हैं? हैं। आखिरी किराक देख रहे मौत डाल दे रहे लाल नेल पॉलिश ओ देखिए शर्लिन चोपड़ा इज वेरी सैसी। हमारी प्यारी राखी आपकी दोस्त है। Oh my God. ठीक है, वो आपको बुलाती है शर्लिन खोपड़ा। एंड खोपड़ा इज मोर सैसी देन चोपड़ा। वर्स्टेस्ट ऑफ द मोमेंट विद राखी। The last time I spoke with her, she said, "सुन, तुझे मेरी फिल्म करनी है। कौन सी फिल्म? रोज़मेरी मार लो." I said, "Come again? फिल्म का टाइटल क्या है?" अरे यार, रोज़मेरी मार लो। मैं तो सेक्सी नहीं हूँ जी। मैं तो अबला नारी हूँ जी। Namaste and hello. Welcome to Alpha Talks, powered by Ticket Mart. आज हमारे साथ है एक fearlessly independent personality, actor and entrepreneur, and unapologetically bold, Sherlyn Chopra. Thank you so much. Thank you so much for joining in our show today, ma'am. So how are you? Great. And you're from Hyderabad. जी. I know your sister. Yeah, Oh. Sharon and you are Ji, sisters, ji. right? And she's also a model, correct? Yes. So I really want to know how your journey had been with your sister in the childhood. As a child, I would always keep to myself. I was the class leader, the school president. So I was very, I would like to say, confident as a kid and also arrogant. Okay. So how is it between you and your sister Sharon? We would not fight much as most siblings do. She would keep to her circle of friends, and I had a very superior complex about myself. Really? Yeah, because I was the class leader in each and every class that I had been to. And I was the school president, as I said earlier. I was my teacher's favorite student. Also, I was the darling of my Sunday school teachers. I used to go to a Methodist church. So I had this air about me that nothing could touch me and no one could compare to me. Yeah, you could say that I was a snob. So who's the older one, you or Sharon? Myself. Yourself. Oh, nice. So you have no tidbit with your sister. कभी झगड़े नहीं होते थे आप लोग के? Because I think but she also wanted to be in the industry, correct? Not that I know of. Okay. She was very clear about her goals and ambitions. She always wanted to be, She's the a bestest musician. MC right now in Hyderabad. Yeah, I would like to believe so. No, I have seen her show. She's very Yeah, good. yeah. अच्छी है. She's very confident. Yes. And she always wanted to be a musician. She loves music. She's also a very great DJ. So yeah, I'm glad that she's, pursuing her passion. अच्छा, तो आप हैदराबाद से हैं. Yes. हाउ न आपको कुछ भी नहीं आता कैसा? क्यों नहीं आता? फिर बोलो कुछ तो भी हैदराबादी में बात करते हैं. हम कैसे लग रहे हैं? अब आखिरी किराक दिख रहे मौत डाल दे रहे लाल नेल पॉलिश ओ अच्छा, तो चलिए शर्लिन, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ. देखिए शर्लिन चोपड़ा इज वेरी सैसी, बट जैसे हमारी प्यारी राखी आपकी दोस्त है. Oh my God. ठीक है, वो आपको बुलाती है शर्लिन खोपड़ा. एंड खोपड़ा इज मोर सैसी देन चोपड़ा. व्हाट डू यू थिंक? I think that she loves me more than she ever professes. So I would like to believe that the reason why she keeps teasing me is because she has this undying love for me. Because I feel if you dislike somebody, why would you bring up that somebody's name? Yeah, Even but casually. why are the tidbits if there's so much love? Is it because of the love the tidbits are there? या है ऐसे है? See, it's like this. Raha bhi na jaye, saha bhi na jaye. So we cannot endure each other's company.
nor I think we can live without mentioning each other once in a while, in my case. But in her case, I guess she loves to bring up my name every now and then, which is okay. I know that she has no ill intention. Yeah, she does as, not. She doesn't come. Okay, so tell me the worstest of the moment with Rakhi and the bestest of the moment with Rakhi. The best moment. I guess, every time we speak over the phone, she says things which are obnoxious. Like, And I end up laughing. Like the last time I spoke with her, she said, "Sun, तुझे मेरी फिल्म करनी है." I said, "अच्छा, कौन सी फिल्म?" And she said very casually, "रोज़ मेरी मार लो." I said, "Come again? फिल्म का टाइटल क्या है?" अरे यार, रोज़ मेरी मार लो. रोज मेरी मार लो क्या? Then she said, इसमें 3 किरदार हैं, रोज़, मेरी और मार लो. ओह, तो मैंने कहा, मैं कौन हूँ इसमें से? तू बता, तुझे क्या बनना है? रोज बोला होगा. I said, एक काम कर, तू पहले मुझे स्टोरी सिनॉप्सिस भेज, मैं पढ़कर बताऊंगी. Then she said, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है स्टोरी सिनॉप्सिस. I said, सुन, अभी मैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, तो ठीक है, मुझे इस राह पर आगे बढ़ने दे, पीछे मत खींच. Then she said, नहीं, I'm very happy for you. So that was that. सुपर. शर्लिन, आपकी जर्नी काफ़ी कंट्रोवर्शियल एंड अनकन्वेंशनल भी रही है. व्हेन यू डिसाइडेड टू चूज द बोल्ड रोल्स, सोसाइटी ने आपको काफ़ी जज किया. हाउ डिड यू मैनेज दैट क्रिटिसिज्म? Well, I like to be an authentic version of myself, which means I enjoy being true to myself. So there was a time when I was comfortable with doing a Playboy cover shoot. And then there was a time when I wanted to stay low profile. And then again, when things got ugly with certain celebs from the industry, I had to, come out and give my 2 cents on what was being said about me. तो जब अलग अलग ज़िंदगी के मोड़ आते हैं, हमें उस तरह से ख़ुद को पेश करना होता है. और जब मैं कवर अप करती हूँ तो कहा जाता है, ओ ये देखो सती सावित्री बन रही है. जब कवर अप नहीं करती हूँ तो कहा जाता है, ये देखो सभ्यता की सारी हदें पार कर रही है. तो समझ में नहीं आता है मुझे कि मैं करूँ तो क्या करूँ. तो आपको So in such a circumstance, I think it is best to be true to myself. Yeah, being true to yourself is the bestest. But आप एक बात बताइए, you have really struggled and you are Sharlin Chopra. People do know you, but sometimes of course you have made it big to yourself. But sometimes don't you feel कि मैं यहाँ I could have been here. True. And don't you have that कि मैं यहाँ पहुँच सकती थी, लेकिन I was always pulled back. Yet you kept it up. How would you do that? Yes, in hindsight, when I think about my journey so far, I truly believe that as I was a class leader each year in my primary school and high school, I could have, excelled here in Bollywood as well. वैसा क्यों नहीं हुआ? Exactly. जब स्कूल में टॉपर रही हूँ मैं, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं? वो शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मैं भटक गई थी. जैसे वहाँ पर एक सेट सिलेबस होता है, आपको वो फॉलो करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, फिर एग्जाम्स देने होते हैं. यहाँ पर कोई सेट सिलेबस नहीं होता है. स्ट्रगल करते हुए आपको अच्छे दिखना पड़ता है. Yeah. You have to look good while struggling. Correct. I completely agree with you. And यहाँ पर कोई सेट सिलेबस नहीं होता है. यहाँ पर ग्रुपिज्म होती है और आपको प्लीज करना होता है अलग अलग ग्रुप्स को. I think more than groupism, it is जहाँ हरी वहाँ चरी. It is so apt. True. So Absolutely. you didn't get your hurry. See, initially I was portrayed as a bombshell. Which is nice. Yeah, especially with my film Red Swastik.
And then मुझे लगा ठीक है, let me carry on with the tag of a bombshell. And then when I wanted to do meaningful cinema, I was said that I was too hot for art films. And then I didn't know how to not look too hot. I mean, even if I wear shalwar kameez, I would still look hot because hotness is in the mind, right? Yes. It's how we carry ourselves. Yes. So then एक I tried. एक मुसलसल किस्म का माइंडसेट जो लोगों का बन गया था उसकी Yeah. वजह से you think so it could have affected you. So then I tried playing dumb and behaving like an idiot, so as to not come across as an intelligent person, because sometimes intelligence backfires. Yeah, it does. Yeah. Oh, she's too educated. Oh, she's too well read. You know, she has the strong aura. She's very intimidating. And then I had to tone down myself in terms of playing it dumb. So ये करते 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 I realized I was not being true to myself. Then I said, you know what? I'm not here to please anybody. I'm not here to project myself as this dumb, idiotic creature, which I'm not. So I'm going to be myself, and if people like me the way I am, they will approach me. And if they don't, no problem. Correct. God is great. करेक्ट और मेरे को आपसे ये पूछना था आपकी एक रील वायरल हुई थी जहाँ पे वेयर यू आर किसिंग अ पैप Oh, विद इन द जैकेट okay. I was not actually kissing the pap. We were trying to enact the ashiki posture, करेक्ट where the heroine lifts one leg and gives an impression that she is actually locking lips. Yeah, but then you were criticized being said it is all for the TRP by the paps themselves and by the by the people. It was indeed It for was? the TRPs. I mean, what else could be the reason? वो तो मेरा कोई best buddy नहीं है. So but do you think it is cool to have PRP by the paps being pap like that? See, Because Instagram, social media, somewhere I think we are really we owe to society, to the messages we give. absolutely. So I don't think so if it is a cool message. Yes. But again, as you said, you want to be yourself. See, I did get a lot of criticism for that from my family. They said, you out of all people should not be doing it because you are too intelligent, you are too classy, you shouldn't be doing it. And with a pap, for heaven's sake, are you mad? Have you lost it? And that day I remember I cried and cried and I said, okay, fine, and don't make me feel as though I committed a murder. Don't make me feel as though Yeah. I robbed somebody, of his money or did something, very, very bad. No, fine, I get it. Maybe I crossed the line of decency. Okay, I forgive myself and I will get it right the next time. And they said, no, you can't be doing this. Come on, pull up your socks. You have to be, the epitome of classiness and stop revealing your skin 24/7. Why do you have to do it, by the way? Is that the way you get work? So after such a lecture from especially my mom and sister, I realized that, okay, fine, time to pull up my socks, time not to get naughty anymore. वो naughtiness सब चार दीवारों के बीच में ठीक है. Yeah. But the moment you step out, you have this public persona and people look up to you, especially, kids. Yeah. They I are think everywhere. social media these days, it is really important. आप social media पे किसको क्या message देते हो? Yeah, and now I take complete responsibility for my actions. So now I don't think I would ever repeat that kind of naughtiness or silliness.
Definitely you can, but No, it's I would about not just want that to. how about you want to give a message? No, That's I all. really want to come across as a woman of substance. I want to come across as a woman of substance. So Yes. I want to walk my talk now. Yeah. Enough of naughtiness, enough of silliness, enough of bachpana. Time Yeah. now to act as a matured lady. Correct. And कहते हैं ना कि उम्र के साथ साथ हमें बदलाव आना चाहिए. क्या उम्र तो वैसे चांदनी दिख मतलब ऐसा नहीं है ना कि वी आर फॉर एवर 18 या फॉर एवर जी। टीनेजर्स. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे व्यवहार में बदलाव आना चाहिए. जरूर. ठीक है 20s में अगर आप मस्ती कर रहे हैं, आप ख़ुद का मजाक उड़ा रहे हैं, लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, आपको माफ़ किया जा सकता है. लेकिन as you grow older you have to take responsibility for your actions, for every word coming out of your mouth. And You definitely. can't be saying oh you know this is the way I am, take it or leave it. Yeah, yeah. ठीक है एक हद तक you can do that, you can live by that quote or saying, but you have to understand that at the end of the day we live in a society where sentiments matter, where values matter, principles matter, and so it is not right to take liberty and wear whatever you feel like wearing and say it's my body, I will show it however I want. No, when we step out of our homes there are children looking up to us. Yeah. स्पेशली जब बिकॉज हम इंडिया से है, भारत Yeah. से है, वी कम विद अ लॉट ऑफ वैल्यूज. और क्योंकि my- ये यू नो बिल्कुल Yeah. डिफरेंट नहीं हो सकता, इसीलिए हम ऑथेंटिक है बिकॉज वी आर Yes, इंडियंस. and I'm so proud that I Yes. live in an Indian society. In my building, there are these little children who come to my house and they say, दीदी चलो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं. They get their bicycle, they say आप चलाइए हमारी bicycle. बेहतरीन. And then I wonder, अरे ये लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हैं और अगर मैं इनके लिए इनकी दीदी ना बन सकी तो फिर क्या फ़ायदा. So I make it a point to dress appropriately. दीदी से याद है, आपको माँ बनने का क्या ख्याल है आपका? क्या बोलूँ मैं, सुबह शाम यही दुआ करती हूँ. हाँ कि माँ बन जाए. हाँ सच में. सीरियसली. बगैर शादी के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे देश में, मैं उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रही हूँ. अभी देखते हैं कि ऊपर वाले की क्या मर्ज़ी है. और Nice. मुझे लगता है कि जिस दिन मैं माँ बनूंगी उस दिन सब कुछ भुला दूंगी. क्यों बगैर शादी के क्यों? आप बताइए, आसान होता है? मुझे तो लोनली रहना ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. आदमी रहे, काम वाम करे. लोनली रहना डिफिकल्ट लगता है? ऑफ कोर्स. कम ऑन. हाँ यार, कोई बच्चा भी होता नहीं पैदा आपको करोगा, परेशान पकड़ करने लेगा के और लिए. क्या. हाँ बच्चा होगा वो संभाल लेगा ना, पकड़ वकड़ लेगा, इतना भारी. आप तो बिल्कुल नहीं अच्छे Oh my लगोगे God. ऐसे. नो बट आई लव सॉलिट्यूड. यानी कोई ऐसा मिल जाए जो ज़्यादा बातचीत ना करे. हाँ, और जब जब मुंह खोले तो उसके मुंह से ऐसे शब्द निकले कि मैं पागल हो जाऊं. यानी परेशान होकर पागल ना हो जाऊं, मैं दूसरी दुनिया में खो जाऊं कि ओ माय गॉड कितनी गहरी बात इसने कह दी, वाह मज़ा आ गया सुनकर. पागल पागल. या ओके. या तो वो शायर हो या कोई संत हो जो बहुत ही मीनिंगफुल बातें कहे. सुन लीजिए गाइस, कोई संत हो शायर तो प्लीज आगे आ अगर जाइए. ऐसे कोई शर्लिन जी बाबा बहुत हैं, interested है. संत हैं प्लीज संपर्क करें. प्लीज संपर्क करें. शर्लिन जी इज अवेलेबल हाँ. फॉर एनी संत. मनी मैम, जी? कुछ पैसा वैसा या बस अच्छा आदमी चाहिए आपको? खर्चा देखिए आप देख लोगे. उनका मन बहुत ही प्यारा हो. तन? और वो तन तो अद्भुत हो. हाँ, फिटनेस एंथुजियास्ट हो वो. डेफिनेटली. हाँ. ओह, दिस आई रियली वांटेड टू आस्क यू शर्लिन, कि आप मतलब अप्स एंड डाउन्स कॉन्स्टेंटली होते हैं इंडस्ट्री में. आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा यू नो आप पागल हो जाते हो जी. और उसके साथ हाउ डू यू कीप अप अपनी फिटनेस के साथ? बिकॉज आपकी जो बॉडी है, यू आर अनबिलीवेबली फिट. आप काफ़ी फिट हो एंड आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर योर फिटनेस. थैंक यू. आई रियली डू. इसका श्रेय जाता है मेरे डिसिप्लिन को. आई एम श्योर. So
या चाहे कुछ भी हो, किडनी फेलियर हो, कोई भी हेल्थ इशू हो या मेंटल इशू हो, जो भी हो, आई मेक इट अ पॉइंट टू वॉच व्हाट आई ईट. ये नहीं कि डिप्रेशन हो गया तो अनहेल्दी खाना अपने मुंह में ठूसती हूँ, बिल्कुल नहीं. तो खट्टी दाल चावल कुछ भी नहीं? आई लव दाल चावल रोटी सब्जी, जो भी हो, घर का बना हुआ हो, ऑर्गेनिक हो एंड फ्रेश हो. आप खाना बनाते हो? मैं ही बनाती हूँ. वाह, क्या क्या बना अपने लेते कि? मेड्स को मैं ही खाना बनाकर खिलाती हूँ. बेहतरीन, क्या बनाते कि आपका बेस्ट? आप जो चाहो वो बना सकती हूँ मैं. झूठे बातें नको करो. आई शपथ. ऐसा दिख रहा पानी भी गर्म करने नहीं आता. क्या बात कर रहे हैं आप? रियली आई एम No, सो seriously. इम्प्रेस्ड. वाओ, लाइक दाल तड़का, कोई भी सब्जी बेहतरीन, बोलो. बेहतरीन. हाँ. हैदराबादी क्या आता कि? बघारे बैंगन. ओफो, My favorite. खुबानी का मीठा. Yes, why not? I वाह, love it. बेहतरीन And बेहतरीन. ये कबाब, शामी शामी कबाब. बुलाओ कभी हाँ. खाने पे, अकेले खा लिए तो कैसा? Most welcome. I would love to. No, इंशाल्लाह. seriously, I love to pamper my loved ones with my हैदराबाद हाथ का से बना आए हुआ तो खाना. फिर Yeah. डेफिनेटली. सो डू यू नो तेलुगु? कैन यू स्पीक तेलुगु आल्सो? తెలుగు కొంచెం కొంచెం. కొంచెం కొంచెం हाँ. అర్థమైంది. అవును, చెప్పండి. చాలా సరే ఆమెకు వద్దు. आई डोंट नो वेरी मच तेलुगु. ओके, तो शर्लिन आप बताइए आज के यंग यूथ के लिए, स्पेशली गर्ल्स, जी. उनको आप क्या एडवाइस देना चाहती है जो अपनी इंडिविजुअलिटी ज़्यादा सही से एक्सप्रेस नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ द सोसाइटी? ओके. सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें. एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. आज मेरी जो सोच है और जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं मेरे, जी. वो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने एजुकेशन के लिए, क्योंकि एजुकेशन ही ना हो तो फिर आप आर्टिकुलेट कैसे कर सकते हैं अपनी सोच को, है कि नहीं? शब्दों को पिरोना, उन्हें शब्दों का चयन करना, ये सब एजुकेशन के ज़रिए आप कर सकते हैं. आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए. करेक्ट. तो मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता को जो उन्होंने मुझको अच्छी शिक्षा दी. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, एजुकेशन इज़ नॉन नेगोशिएबल एंड बिफोर एक्सप्लोरिंग योर गोल्स, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में हो, ट्राई टू बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग. क्योंकि ऐसा नहीं है कि रिजेक्शन सिर्फ बॉलीवुड में होती है, बिल्कुल नहीं. रिजेक्शन किसी भी इंडस्ट्री में हो सकती है, कॉर्पोरेट, मेडिकल, फलाना फलाना. सो बिकम मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड कनेक्ट विद योर सेल्फ. फाइंड आउट कि आपकी इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं, स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और रेड फ्लैग्स से आप वाकिफ़ हो जाएं किसी भी बिहेवियर में. चाहे आपके सामने आपका बॉस हो या बॉयफ्रेंड हो या फ्रेंड हो, जैसे ही आप रेड फ्लैग्स नोटिस करते हैं आप सावधान हो जाएं. सो यूजुअली क्या होता है, हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर टॉक्सिक इक्वेशन में हम बंध जाते हैं और फिर उस टॉक्सिसिटी को सहते सहते टॉक्सिक हो जाते हैं. एंड देन इट स्टार्ट्स टेकिंग अ टोल ऑन आवर मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल wellness. True. So for me, all these things matter a lot. So you want to say the girl need to be really educated and independent so that she tackles the society. The education is at Yeah, first. like if you're mentally strong and if somebody makes an indecent proposal, जी. you know how to tackle. Correct? बट आपको नहीं लगता कि हम सब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत टॉक्सिक होते हैं, बट हम वो ट्रेट्स पे वर्क करते हैं? Yes. क्योंकि काम जब, जैसे आप बोल रहे थे कि काम के लिए हर जगह रिजेक्शंस होते हैं, तो कहीं ना Correct. कहीं वो नेगेटिव टॉक्सिसिटी हिट करती है. Correct. तो आई थिंक उस चीज़ के लिए वी नीड टू बी मेंटली स्ट्रांग सो दैट वी डोंट. And it's an everyday process. ऐसा नहीं कि आप एक कोने में जाकर 2 घंटे के लिए बैठ जाएं और फिर आप खुद से कहें चलो अब मैं मेंटली स्ट्रांग हो गई. Every day you have to work on yourself. दैट्स No, ट्रू. because every day the society will try to pull you down. तू ऐसी है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू ये है, तू वो है.
सोसाइटी यानी ये जो ट्रोल्स होते हैं सोशल मीडिया पर, वो आपका भेजा फ्राई कर सकते हैं, आपके मोरल को हिट कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी एनर्जी को बचा कर रखना होता है, खुद को पेप टॉक देना होता है। येस यू कैन डू इट, कम ऑन शर्लिन, इट्स ओके, यू फक्ड अप, इट्स ओके, पुल अप योर सॉक्स, गेट इट राइट दिस टाइम। आप मेरे को ये बताइए कि हाउ एक कोई भी सेलिब्रिटी हो या कोई भी हो, अ सोशल फिगर बेसिकली, वो कैसा होना चाहिए? हाउ शुड इट बी लाइक? यू मीन टू से पब्लिक फिगर? अ पब्लिक फिगर या देखो, यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं है, बट वी ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। सो मेरे ख्याल से ऑथेंटिसिटी इज़ व्हाट आई लुक फॉर इन पीपल। लाइक अगर आप और मैं बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, फ्रिवलेस बात कर रहे हैं, या हम सच में ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे दिल से निकल रही हैं। सो इफ़ a person is authentic, then I would love to spend time with that person. बट पब्लिक फिगर आजकल कहाँ ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं? होना चाहिए ना। हार्डली एनीबॉडी। Because authenticity is everything. आप किसी के अंदर से असलीपन निकाल दो तो क्या बचता है? Nothing. आपको अच्छा लगता है किसी से फेक बातें करना? Oh how sweet. Oh you look like a bomb. No, अगर आपको वो अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है, आप मुंह पर मत बोलो कि तुम मुझे नहीं पसंद है, आप कम बात करो उनसे। लेकिन सच में अगर आपको कोई बहुत अच्छा लगता है, आप उनसे कहो कि लिसन, आई लव हाउ यू मेंटेन योरसेल्फ, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, एंड यू कैन ओपन अप योर हार्ट टू दैट पर्सन। या फिर अगेन वही है, टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ जाती है कि अप्रिसिएशन ही हम भूल जाते हैं। या फाइन। तो फिर आपने खुद के लिए अपनी बाउंड्रीज को कैसे डिफाइन किया? जब आपने डिसाइड किया कि जब आपने अपने स्टैंडर्ड्स चूज किए, हाउ डिड यू चूज योर स्टैंडर्ड्स विथ योर बाउंड्रीज? स्टैंडर्ड्स तो मैं रोज़ाना सेट करती हूँ। कुछ स्टैंडर्ड्स को मैं अचीव कर पाती हूँ और बाकी के रह जाते आपके हैं। लिए स्टैंडर्ड्स का डेफिनेशन क्या है? Being true to myself, not playing with people's emotions, and not doubting myself, you know, and not giving people the power to question my worthiness. For example, अगर मैं किसी प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाती हूँ और उन्हें लगता है कि मैं हीरोइन बनने लायक नहीं हूँ, तो ये उनकी सोच है। करेक्ट। उस सोच को मैं वहीं पर अस्वीकार करूं और कहूं कि सर, आपकी सोच है, ये सोच आपको मुबारक, आप अपनी सोच को मुझ पर ना थोपें। मुझे लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी इंसान हूं, मुझे लगता है कि मुझ में आगे बढ़ने की क्षमता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, ये आपकी सोच है, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। तो हम क्या करते हैं, अच्छा आगे वाला हमको बोल रहा है कि हम अच्छे नहीं हैं, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर घर जाकर हमें लगता है मैं ऐसी क्यों हूँ, वाई गॉड वाई, आपने मुझे ऐसे क्यों बनाया। अरे कभी गॉड से पूछ लो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आई बिलीव दैट गॉड इज़ आवर बिगेस्ट चीयर लीडर। आप उनको भगवान बोलो, अल्लाह बोलो, ईश्वर बोलो, कभी पूछो उनसे आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वो अच्छा सोचते हैं हमारे बारे में, आपके बारे में, मेरे बारे में, और वो चाहते हैं कि हम कामयाब हों। लेकिन नहीं, हम उनसे नहीं पूछते कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम ये देखते हैं कि अच्छा ट्रोल्स हमारे बारे में क्या कह रहे हैं, कोई फलाना प्रोड्यूसर हमारे बारे में क्या कह रहा है, कोई फलाना डायरेक्टर हमारे बारे में क्या कह रहा है। क्यों? हाउ डज इट मैटर? करेक्ट। लेकिन शर्लिन, बिकॉज constantly you have been in the controversies in everything, and you know, some people really do appreciate you, and it's okay, it's with everybody. Few people appreciate थोड़े लोगों को किसी लेवल पे they pull them down, and with you आपके साथ भी same रहा। I think सभी लोगों के साथ इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है जी। लेकिन आफ्टर you know, यू हैव चूज, आपने अपने स्टैंडर्ड्स चूज कर लिए, करेक्ट? कि मैं, आपके स्टैंडर्ड्स रोज सुबह चेंज होते हैं, यू सेट योर स्टैंडर्ड्स एज यू वेक अप। जैसे आप उठते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड चूज कर लेते। या लेकिन जब आप आगे वाले के पास जाते हैं तो फिर उसके
स्टैंडर्ड तो आप सोच ही नहीं सकते कि वो किस लेवल पे होगा, इस लेवल पे होगा, इस लेवल पे होगा, और ये लेवल इसका नहीं है, ये लेवल इसका भी होता है बहुत बार, बिल्कुल है ना। तो आप उसको कैसे टैकल करते हो? यू मीन टू से डिसरिस्पेक्ट, मतलब अगर आगे वाला मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है तो मैं उस इंसान को कट ऑफ करती हूँ. एंड आई लव टू रिस्पेक्ट पीपल इन जनरल विदाउट चेकिंग देयर नेटवर्थ. फ़िलहाल मेरे घर पर इंटीरियर का काम चल रहा है और मैं हर लेबरर को जी कहकर बोलती हूँ, चाहे उनका नाम जो भी हो, रामू जी, अब्दुल जी, फलाना जी, ये जी, क्योंकि वो लेबरर हैं. काम किया क्या? नहीं, that's fair. तो मुझे लगता है कि इफ़ आई गिव रिस्पेक्ट टू पीपल देन आई हैव द राइट टू एक्सपेक्ट रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल. डेफिनेटली. सो दैट इज़ माई मोटो इन लाइफ, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट. लेकिन रिस्पेक्ट देने के बाद भी अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, उस इंसान को कट ऑफ कर दो. ज़रूरी है उनसे बात करना? अगर ज़रूरी है तो फिर बात कीजिए और उनसे कहिए कि देखिए मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ और मेरी ये इल्तिजा है कि आप भी तमीज़ और तहज़ीब से बात करें मुझसे. लेकिन अगर आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप बात ना करें. सो फॉर मी रिस्पेक्ट इज़ एवरीथिंग. करेक्ट. सो यू स्टार्टेड एज एन एक्टर, यू वांटेड टू बी एन एक्टर, आपको एक्टर बनना था. तो एज एन एक्टर आपने कभी सोचा कि सीरियसली ये सब छोड़ो, फिटनेस वगैरह सब छोड़ो, मैं सीरियसली एक्टिंग करती हूँ, आज मैं सीरियसली एक्टिंग कोर्स करूँगी, मैं सीरियसली जाके एक्टिंग पे काम करूँगी, मुझे किसी के बुलशिट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो एक्टर बन के रहूँगी और मैं लाजवाब एक्टर बन के रहूँगी. तो आपने कभी सोचा कि आई विल टेक दिस सीरियसली, मैं एक्टिंग का सीरियस कोर्स परस्यू करूँगी टू यू नो? सी आई टेल यू वन थिंग, जहाँ तक एक्टिंग की बात है, मुझे लगता है कि कोई एक्टिंग सीख नहीं सकता. ओके. नो, नॉट पॉसिबल. ये तो वही बात हो गई, क्या आपको ज़िंदगी जीना कोई सिखाता है? नहीं, आप खुद से सीखते हैं. अब मैं बोलूँ कि नहीं आपको रोना नहीं आता, आप प्रैक्टिस कीजिए. क्यों रोना नहीं आता? बिल्कुल आता है, हम सबको रोना आता है. जब मेरे पापा गुजर गए, क्या मुझे तकलीफ़ नहीं हुई, दुख नहीं हुआ? बेहद तकलीफ़ हुई. क्या मेरे आँखों से आंसू नहीं निकले? बेशक निकले. किसने सिखाया मुझे रोना? किसी ने आकर सिखाया कि देखिए पहले ना लेफ़्ट आई से एक आंसू गिराइए, फिर राइट आई से एक आंसू गिराइए? नहीं. जब दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है, टप 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 आंसू बहने लगते हैं. तो एक्टिंग फॉर मी इज़ रियल. आप जब कोई किरदार निभाते हैं, आप ये मत समझो कि आप हैं, नहीं, आप वो किरदार हैं. अब अगर उस किरदार को उस कहानी में तकलीफ़ होती है तो वो किरदार अफसोस करेगा, रोएगा. तो आपको लगता है कि एक्टिंग कोर्स वगैरह उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए? नहीं, आप सबसे पहले एक जेन्युइन इंसान बनो, ऑथेंटिक इंसान बनो. करेक्ट. कई लोगों को दिल से आई लव यू बोलना नहीं आता है. जस्ट इमेजिन, अगर मैं आपको आई लव यू बोल रही हूँ, आई लव यू एज अ फ्रेंड, आई लव यू एज अ सिस्टर, और वो आई लव यू आपके दिल को नहीं छू रहा है, इसका मतलब मेरे दिल से नहीं निकल रहा है वो. यानी मैं कहीं ना कहीं फेक होकर आपको आई लव यू बोल रही हूँ. लेकिन अगर मैंने तह दिल से, सच्चे मन से आपको आई लव यू बोला, आपको फील होगा. करेक्ट. जी. सो इट्स ऑल अबाउट बीइंग ऑथेंटिक, इट्स ऑल अबाउट बीइंग रियल. कैमरा के सामने एक्टिंग मत करो, जस्ट बी रियल. आपको हीरो को आई लव यू बोलना है, ऐसे बोलो कि सच में आपको उससे प्यार है और आप बोल रहे हैं आई लव यू. यहाँ वहाँ देख रहे हैं, अच्छा टेक रेडी है, ओके, आई लव यू. ये क्या बात हुई? छे. ओके. तो फॉर मी एक्टिंग ऐसे करो जैसे कि आप ज़िंदगी जी रहे हो, और ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे कि एक्टिंग कर रहे हो. ओके. अगर कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है, जस्ट इग्नोर. समझो कि कोई येड़ा आया है आपके सामने, एक सीन चल रहा है और वो कुछ बोल रहा है आपको, और आपको बस उसको इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है. यहाँ वहाँ देखो, रिएक्शन मत दो, पागल हो जाएगा. दैट्स ना? या ये ऑस्टरवाइल्ड ने भी बोला था. आप एक वक्त था जब आप हेडलाइंस में थी फॉर ऑल द बोल्ड रीजंस, लेकिन उस फेम का प्रेशर कैसा था
क्या कभी लगा कि मैं सिर्फ एक इमेज बन के रह गई हूँ? हाँ, आज भी लगता है ऐसा कि जब ख़ास तौर पर जब कुछ कहा जाता है मीडिया में, ऐसा लगता है कि क्या किया, क्या कमाया, हो क्या रहा है। फिर आई चेंज माई नैरेटिव, माई परसेप्शन, माई पर्सपेक्टिव, एंड देन आई से टू माई सेल्फ, देखो लोग मुझको कैसे परसीव करते हैं ये उनका लुकआउट है। अब हर एक को डंडा मार के हम कह नहीं सकते चल अच्छा सोच मेरे बारे में, चल, नो। सही बात है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ आई कैरी माई सेल्फ। अब अगर मैं एक पैप के साथ मस्ती कर रही हूँ, 3/4 बोब्स को एक्सपोज करते हुए, क्या आई एम सॉरी, आई वांट टू जी। से कि आप बोलते हैं मेरे पे डिपेंड करता है मैं कैसा कैरी करती हूँ ये सब, जी। लेकिन आप कैरी कर रहे हो फाइनली फॉर द सोसाइटी। यू आर बीइंग आउट देयर फॉर द सोसाइटी। यू वांट टू बी पैप, यू वांट टू बी देयर, डेफिनेटली सबको दे वांट टू बी देयर। बट नाउ आई डोंट वांट। रियली? रातों रात कुछ हो गया मेरे साथ। क्या हो गया? क्यों कुछ ऐसे? कुछ हुआ, हाय, क्यों शर्लिन? मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली कुछ हुआ। अच्छा, अभी रिसेंटली, यानी कुछ हफ्ते पहले, आई वाज जस्ट क्या? जैसे क्या? I was just thinking and thinking about which direction I would like to move ahead in life, and then a part of me said, enough, बस बहुत हो गया। ये मस्ती मज़ाक करना पैप्स के साथ, ये कैजुअल स्पॉटिंग्स करना, एंड खाली पीली हॉट कपड़े पहनना, सड़कों पर नहीं, निकलना। हॉट पहनना इट्स नहीं, फाइन। आप कोई रेड कारपेट इवेंट अटेंड करने जा रहे हैं, ठीक है, आप कोई डिज़ाइनर कॉस्ट्यूम पहनते हैं, वो अलग बात है। लेकिन किसी रेस्टोरेंट पर जाने के लिए स्किन शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। आई एग्री। एयरपोर्ट जाने के लिए स्किन शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिम जाने के लिए स्किन शो करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने पर मुझे ये एहसास हुआ कि यस, यू आर राइट शर्लिन, यू आर राइट। चलो ठीक है, अब बताओ क्या करना है। एंड द वॉइस इनसाइड मी सेड, नाउ ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। Try to be the Sherlin that you were when you were in school. The class leader, the school topper, you know, the one who used to believe that she is number one. पर आपको नहीं लगता उस वक्त आपकी एनर्जी काफ़ी अलग थी, इस वक्त एनर्जी अलग है? It differs. I can be that person if I start behaving like that person. तो वो Sherlin स्किन शो नहीं करती थी, द स्टूडेंट शर्लिन। तो आपने ऐसे एकदम से क्यों सोच लिया आई नॉट शो माई स्किन? नहीं, ऐसा नहीं है कि आई विल नॉट शो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई डायरेक्टर मुझे अप्रोच करता है किसी स्पेशल सॉन्ग के लिए, किसी ऐसे किरदार के लिए जो कम लिबास पहनती है उस कहानी में, तो बात अलग है। लेकिन जिम जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए, किसी होटल पर जाने के लिए मुझे किसी किरदार में घुसने की ज़रूरत नहीं है ना। या वहाँ पर तो मैं स्वयं को दर्शा रही हूँ, करेक्ट? जो मैं हूँ मैं वो दर्शा रही हूँ। तो जिम जाने के लिए मुझे किसी किरदार का धारण करने की ज़रूरत नहीं है। जिम जाने के लिए टीना बनने की ज़रूरत नहीं है। एयरपोर्ट जाने के लिए राधा बनने की ज़रूरत नहीं है। एज शर्लिन चोपड़ा मैं जिम जा रही हूँ, एज शर्लिन चोपड़ा मैं एयरपोर्ट जा रही हूँ। सो बी ऑथेंटिक शर्लिन। जिस तरह की ड्रेसिंग आपको पसंद है आप वो पहनो। मुझे कवर अप करना अच्छा लगता है, तो अगर सच में अच्छा लगता है कवर अप करना तो आप स्किन शो क्यों कर रही हैं? TRPs के लिए? ओह, इसलिए ताकि मीडिया मुझे फीचर करे? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि अगर तुम कवर अप करोगी, क्लासी लिबास पहनोगी, Exactly, तुम्हें suddenly कोई from- कवर अप नहीं, तुम्हें कोई कवर नहीं करेगा, कोई फीचर नहीं करेगा, ऐसा लगता था। तो अब क्या लगता है? अब लगता है आई डोंट केयर, आपको फीचर करना है आप कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। बट आई विल नॉट रिवील माई स्किन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, नो। देयर इज़ अ टाइम, देयर इज़ अ प्लेस फॉर दैट। I also believe it कि I mean you dress however you wish to, but
unnecessarily walking and giving erection to men, it's not cool. Correct? Yeah. Yeah. So Yeah. it's all about that. How are you positioning yourself? I want to be a woman of substance. Okay. Back it up with your actions. जैसे हम शुरू किए थे, हम इंडिया से आते हैं, we हाँ. have values, morals, and that is why No, we are if different. I want people to perceive me as a very classy lady, a no nonsense woman, then I should project myself like that. A no nonsense woman does not engage with paps or anybody on the streets and does, cheap activities for the sake of eyeballs. No. A no nonsense woman would never do that. A no nonsense woman would not wear clothing that is too provocative. Is it coming from your experience, Sholin? जैसे कि मैंने कहा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते करते इस नतीजे पर पहुंची हूँ मैं खुद अपनी टीचर हूँ, मैं खुद अपनी माँ हूँ. सो आई टेल माई सेल्फ, आई से शर्दन बेटा, आपको नो नॉनसेंस वुमन बनना है, एक्ट लाइक अ नो नॉनसेंस वुमन. Huh? Don't just keep saying, I want to do this, I want to do that. Act like the person that you want to be. Correct. So, तो शर्लिन, लॉकडाउन में काफ़ी स्ट्रीमिंग एप्स आए थे. आई थिंक you own few of the apps. Were you on a platform where you would stream? yes, How did that go for you? well, that's a controversial subject. Which platform was it? There was this app that I was a part of, which was created by Raj Kundra. अच्छा. Yeah. अच्छा. So how was So- it for you? Why did it go controversial? Was it like the rainy days in your life? और आपके पास कुछ नहीं था और आपको चूज करना था too? Well, initially we started off with Bollywood kind of glamour, and then we moved on to bold glamour, and that's when all hell broke loose. So, तो अगर आपको मौका मिले, would you again live stream or you would just would I want to live stream again? walk on that path? I think. What is it exactly, the streaming apps? See, there are different kinds of streaming apps available, and for that you don't have to go naked or full Correct. Monty. You could be dressed in classy clothes and make yourself visible to your viewers and engage in naughty or fun-filled conversations. It's like a pep eye candy Yeah. streaming app. Yeah. Nice. So again, the question arises: do I want to make myself available to my viewers via a video streaming app? Maybe not. I would like to keep myself exclusive. Exclusive. Okay. Yeah. But how did that part go for you, Raj Kundra के साथ? Well, as I said earlier, it was controversial, and one thing led to another, and it became messy, and we have all learned our lessons. Okay. ठीक है, आपने रिसेंटली अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में ओपनली बात की है, जी। इंडस्ट्री के डार्क साइड के बारे में. ये डिसीजन कितना टफ था आपके लिए, स्पेशली द रिएक्शंस? Well, as I said earlier, I didn't know how to deal with most situations in life initially. मैंने कुछ देर पहले कहा था कि one should first become mentally strong and then look for work projects in any field whatsoever. But when I had come here, I was not mentally strong. I was very naive. कितने साल के थे जब आप आए थे? I think I was in my early 20s. ओह, Yeah. So when people would ask me casually, dinner करते हैं, dinner पर चलते हैं, I would say,
हाँ ठीक है, तो आप डिनर में क्या खिलाएंगे मुझको? यानी दैट नाइव आई वॉज। और अब समझ में आया कि डिनर का क्या मतलब होता है। लेट्स मीट ओवर डिनर। हाँ, हालांकि जो इज़्ज़तदार लोग हैं वो जब डिनर बोलते हैं वो सच में डिनर ही होता है। हाँ, डिनर के लिए ही न्योता देते हैं। लेकिन जो ठरकी लोग होते हैं, आई होप यू नो व्हाट ठरकी मीन्स। जी जी। पर इनसे साबिका ज़्यादा पड़ता है बॉम्बे में। हाँ। साबिका यू अंडरस्टैंड राइट? साबिका। साबिका मीन्स यू गेट अलोंग, वैसे ही लोग मिलते हैं, यू नो, साबिका पड़ता है इन ठरकियों से। तो पहले नहीं मालूम था जब ये ठरकी लोग बोलते थे डिनर पर मिलते हैं, डिनर करते हैं साथ में। एंड आई वुड से जी सर करते हैं ना। तो सर मैं 7 बजे आ जाऊँ क्योंकि मैं 7 बजे डिनर करती हूँ। एंड दे वुड से 7 बजे जल्दी नहीं होगा? एंड आई वुड से नहीं, 7 PM इज़ अ गुड टाइम फॉर डिनर। तब नहीं मालूम था ना कि डिनर का दूसरा मतलब क्या होता है। तो धीरे धीरे पता चला कि अच्छा। बट हु वर दिस पीपल? कौन थे ये लोग? ये वही लोग हैं जिन्हें हम समाज के कॉकरोचेस कहते हैं। और ये कॉकरोचेस हर फील्ड में होते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री में है, नहीं। कॉरपोरेट फील्ड में भी होते हैं, मेडिकल फील्ड में होते हैं, हर हर जगह होते हैं ये। एक आध नाम देना चाहेंगे? कोई एक कॉकरोच का भाई। यानी आप चाहते हैं कि ये इंटरव्यू कंट्रोवर्शियल हो जाए? अरे दे दो नाम, मतलब ताकि दूसरे अवेयर हो जाए ना। सी आई ऑल्सो एस्पायर टू बिकम एन एक्टर सो दैट आई बी अवेयर एज अ बहन। मुझे बता दो कौन है वो कॉकरोच, मैं दूर रहूंगी। आपके कान में बोलूँगी। ओके ओके। शर्लिन, 2021 में आपका किडनी फेलियर का न्यूज़ आया था जी। एंड डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था एंड आप काफ़ी डिप्रेस थी उसके बाद। जी। ऐसी बातें बाहर आई थी, तो क्या हुआ था एक्चुअली? 2021 सितंबर में जब मुझको डायग्नोज किया गया था, तब रिज़ल्ट ये आया कि टोटल किडनी फेलियर हुआ मुझको उस समय। एंड लास्ट स्टेज था वो किडनी फेलियर का। और उस वक्त मुझको ये डायग्नोसिस मिली, यानी बहुत देर से मिली। तो आई रश्ड टू माय नेफ्रोलॉजिस्ट। लास्ट स्टेज मतलब आपको उतने टाइम तक पता ही नहीं चला? यानी कुछ कुछ सिम्टम्स नोटिस किए थे मैंने, बट मैंने इग्नोर किए, नज़रअंदाज किए, ये सोचकर कि हाँ ठीक है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। यानी जब किडनी फेलियर होता है तो वाटर रिटेंशन होती है। करेक्ट, यूटीआई होता होगा, यूरिन कम पास होता है और वाटर एक्यूमुलेशन बॉडी में होने लगती है। तो जहाँ जहाँ कैविटीज़ होते हैं बॉडी में, वहाँ वहाँ वाटर एक्यूमुलेट होता है। जैसे यहाँ पर कैविटीज़ होते हैं, करेक्ट, तो पानी यहाँ पर जमना शुरू हुआ। और जैसे यहाँ पर होते हैं कैविटीज़ पैरों के आसपास, एंकल्स के आसपास, तो वहाँ पर सूजन होने लगी और वाटर एक्यूमुलेशन होने लगा। और मैं देखकर सोचती थी शायद और आप वेट अकेले गेन हो थे? रहा है। हाँ? अकेले थे आप? या तो मुझे लगा हाँ चलो वेट गेन हो रहा है, शायद मैं ज़्यादा खाना खा रही हूँ, अब मैं डाइटिंग करूँगी ज़बरदस्त तो ये सब कम हो जाएगा। लेकिन पता चला कि नहीं, ये वेट गेन नहीं है। यानी वेट गेन हो रहा था लेकिन डाइट की वजह से नहीं हो रहा था, वाटर रिटेंशन की वजह से हो रहा था। तो आई रश्ड टू द डॉक्टर आफ्टर गेटिंग ऑल दी मेडिकल टेस्ट्स डन, सोनोग्राफी वगैरह वगैरह। तो डॉक्टर ने बोला कि अरे 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 बहुत देर से आए आप, यू शुड हैव कम अर्लियर। आई सेड इसका मतलब? देन ही सेड डू यू हैव अ फैमिली? आई सेड व्हाई? ही सेड बिकॉज वी माइट रिक्वायर अ किडनी फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। माय गॉड। आई सेड अरे अब क्या करें, उतनी मोहब्बत तो नहीं है घर वालों को मुझसे। देन ही सेड तब तक आपको डायलिसिस पर जाना पड़ेगा। उतनी मोहब्बत नहीं है, फिर अगर वो आपको बोलेंगे छोटे कपड़े बड़े कपड़े, तो फिर आपको क्यों फ़र्क पड़ता है? पड़ता है। क्यों? आई थिंक आई एम वेरी सेंसिटिव बाय नेचर। कोई कुछ बोल दे तो
वो आप बात अपनी दिल को तरफ से लगती अपनी है। फैमिली के और इंक्लाइन होंगे मे बी. आई रिस्पेक्ट देम. ओके सो देन Yeah, so the doc said या तो डायलिसिस या नहीं तो अगर तुरंत आप किडनी का बंदोबस्त कर सकते हैं अपने परिवार वालों से बात करके तो आपका किडनी ट्रांसप्लांट कर देता हूँ. आई सेड नहीं नहीं ऐसा तो कोई स्कोप नहीं है. ओह नो. देन ही सेड ठीक है फिर डायलिसिस. आई सेड नहीं वो क्या होता है. देन ही सेड कि यहाँ पर छेद किया जाएगा और हर हफ्ते आपको 3 से 4 बार विज़िट करना होगा आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए प्लस यूरिन को पास आउट करने के लिए. आई सेड नहीं नहीं वो भी नहीं चाहिए मुझे क्योंकि ब्यूटी मतलब ये सब ब्यूटी है ना. मैं यहाँ पर आप छेद कर देंगे निशान पड़ जाएगा मुझे नहीं चाहिए वो सब. देन ही सेड क्या करना है आपको. आई सेड आप ओरल मेडिकेशन दीजिए मुझे इंजेक्शंस दीजिए दुनिया भर की दवाइयाँ दीजिए और मैं प्रे करना शुरू करूँगी देखते हैं क्या होता है. ही सेड ठीक है बट आपके पास 3 से 4 महीने हैं. देन आई स्टार्टेड प्रेइंग वेरी हार्ड. आई स्टार्टेड टॉकिंग टू माई बॉडी डियर बॉडी प्लीज़ हेल्प मी. आई लव यू डियर बॉडी. अगर मैंने कुछ गलत किया हो आपके साथ मुझे माफ़ कर दो डियर सेल्स. आई विल टेक गुड केयर ऑफ़ यू. प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी. मुझे जल्दी ठीक होना है. तो ऐसे करके मैं प्रे करती थी. एंड मुझे रिज़ल्ट्स इनिशियली दिखाई नहीं देते थे. यानी वो डॉक्टर मेरे मुझको सुबह शाम प्रिस्क्रिप्शन भेजते थे ये खाओ या अच्छा इससे रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है ठीक है चेंज करो ये खाओ यू नो. एंड वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन जो कैंसर पेशेंट्स को दिए जाते हैं लास्ट स्टेज के कैंसर पेशेंट्स को. और उससे हेयर फॉल होता था मेरा बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलता था लाइक विजिबल रिज़ल्ट. और ये कितने टाइम का आपका मेडिकेशन चला है. इनिशियली फॉर 3 months नॉन स्टॉप. माय गॉड. Like 5 to 6 times a day I would take my oral medication alarm set करके टाइम पर खाना है. And I was on steroids for faster recovery. Steroids are life savers just so you know. तो रिज़ल्ट दिखता नहीं था. अरे क्यों नहीं दिख रहा है रिज़ल्ट. वाटर रिटेंशन कम नहीं होता था. तो आई वुड फील डिप्रेस्ड कि हो क्या रहा है ये. आई थिंक शायद वक्त आ गया है जाने का. तो आई वुड टॉक टू माई डैड यू नो माई लेट डैड. आई वुड टॉक टू हिज स्पिरिट. आई वुड से डैडी डू यू वांट मी टू कम मीट यू बिकॉज यू सी माई कंडीशन अभी किस हालत में हूँ मैं. एंड डॉक्टर मुझे कॉल करके पूछते थे कि कोई है आपके आसपास आपकी केयर करने के लिए. और मैं कहती नहीं. तो कैसे आप मैनेज कर रहे हैं इस हालत में. कोई तो हो जो आपका हाथ पकड़े और कहे कि इट्स ओके हम हैं साथ में हम हैं. आई सेड नहीं वैसा कोई सीन नहीं है. देन ही सेड गॉड ब्लेस यू बेटा आपको अकेले खुद से लड़ना पड़ेगा अभी. देन आई वुड गेट सुइसाइडल थॉट्स रात के 3 बजे. नहीं मुझे नहीं जीना है मुझे नहीं जीना है मुझे बस. और मतलब 3 महीने गोलियां खाकर देखी ना मैंने कुछ नहीं हो रहा था. तो मुझे लगा नहीं ऐसे धीरे मरने के बजाय एक झटके में मर जाऊं तो वो बेहतर है. तो इस तरह के ख्याल आते थे. एंड वो मेडिसिन खाने की वजह से चेहरा मेरा चांद की तरह गोल और एकदम फुला हुआ होने लगा. मतलब फूलने लगा वो. और बॉडी एकदम पतली होती जा रही थी दिन ब दिन. यानी प्रोटीन लॉस हो रहा था. दिन में कुछ 2000 ग्राम प्रोटीन. माय गॉड. ऐसी हो गई थी मैं. जस्ट इमेजिन एक लड़की जिसका शरीर ऐसा हो माचिस की काड़ी की तरह और चेहरा ऐसा हो माय गॉड. फुग्गे की तरह. माय गॉड. तो इट्स लाइक अ कैरिकेचर ना कॉमिक फिगर. तो ख़ुद को आईने में देखकर मैं सोचती थी छी यार नहीं मुझे अपना ये रूप नहीं देखना है. एंड देन आई वुड जस्ट क्लोज माई आईज एंड कॉन्टेम्पलेट कि आज करूँ कि कल करूँ कि परसों करूँ यू नो खुदकुशी. देन एंड देन आई वुड कॉल माई डॉक्टर. आई वुड से डॉक्टर हैव यू हर्ड ऑफ euthanasia.
am I fit for that? Can you please give me an injection? And he would say, no, we can't do that. And are you kidding? मतलब आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? And then I would say, नहीं, अब बस बहुत हो गया. मतलब ये फ़नी चेहरा लेकर मैं कैसे काम मांगने जा सकती हूँ और कुछ बचा ही नहीं है शरीर में. And I would literally take 2 pillows to sit on a chair or a sofa because हड्डियों का ढांचा था. And whenever I would sit, my behind would hurt because of the bones. मांस होना चाहिए ना शरीर पर. Then he said, नहीं, just hang in there. I'm doing my best. You do your best. देखते हैं कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट दिखाई देगा बहुत जल्द. So he changed the medication. He gave me much more stronger medication. And then he said कि देखो ये जो medication मैं आपको देने वाला हूँ इससे आप कभी शायद कंसीव ना कर पाएँ. तो जमेगा आपको. Will you be able to accept this side effect? I said मैं ज़िंदा रहूँगी तो इस बारे में सोचूंगी ना. मैं बचूंगी ही नहीं तो मदरहुड के बारे में सोचकर क्या फ़ायदा. तो आप प्लीज़ मुझे बचाइए पहले अगर आप बचा सकते हैं. नहीं से ठीक है तो फिर आप ये मेडिसिन लीजिए. एंड बहुत ही एक्सट्रीम हेयर फॉल होता था उस मेडिसिन की वजह से. एंड देन फाइनली जैसे तैसे किस्मत से लड़कर झगड़कर ज़िद करके ख़ुद को मैंने मौत के मुंह से बाहर निकाला. शुक्र है you're fine now. Yeah, and my nephrologist till date tells me that I am a miracle, a walking, talking miracle, because none of his patients, kidney patients so far, have miraculously managed to reverse their kidney failure. It's not possible. आप जाकर सर्च कीजिए गूगल पर. No, I'm sure. To reverse kidney failure is not possible. It is not, I'm sure. So I think it is my father's blessings, the blessings of my ancestors, and somewhere deep down I wanted to live. I wanted to, be alive and live and someday experience motherhood. So Inshallah. that was what kept me going. तो हाउ डू यू फील नाउ? तो आपके अब्बा या आप अपने पापा के साथ ज़्यादा क्लोज थी देन योर मदर? Yeah, I was a daddy's girl. Daddy's girl. Yeah. Nice. अच्छा आप ये बताइए. सो आप आई रियली डोंट वांट टू आस्क यू दिस, लेकिन क्योंकि मुझे पूछना भी है, क्यूरियस मैं हूँ क्योंकि हम एक दूसरे से बात करने ही आए हैं. गहना आई थी यहाँ पे. Okay. और आप अगर आपने देखा होगा उनका पॉडकास्ट हमारे चैनल पे तो उन्होंने कुछ कहा है आपके बारे में. Okay. विच आई वुड नॉट लाइक टू रिपीट. लेकिन Okay. आपका क्या कहना है? गहना, पूनम पांडे. Nothing at all. I don't know them personally. कभी मुलाकात नहीं हुई है. मैं जानती नहीं हूँ उनके बारे में, तो मेरे ख्याल से कमेंट करना अच्छा नहीं होगा जिनको मैं पर्सनली नहीं जानती. तो आप लोग बिल्कुल कभी पर्सनली नहीं मिले और पर्सनल फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं है? नहीं, कभी दोस्ती नहीं हुई. ओके. बट शी सेड अ लॉट ऑफ nasty things about you. But it's absolutely okay because that's her life and she can say whatever she wants to say. But the truth is that I've never interacted with them personally or professionally. गहना ने कहा था आप करण कुंद्रा के स्कैम में, सॉरी राज कुंद्रा के स्कैम में इन्वॉल्व हो. Why would she say that? Involved? Yeah, the scam of this Raj Kundra. I don't know. I was summoned by the Mumbai crime branch as a witness. I was asked to share whatever knowledge I had. About the app? Yeah, about the app. So I guess because she was imprisoned, she feels that लेकिन ऐसे क्यों? I should also have been imprisoned, maybe.
उनको ऐसा लगता होगा, आई डोंट नो, बट आई वॉज ऑलवेज summoned as a witness, not as an accused. लेकिन ऐसे क्यों है जब आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप जानते नहीं हो गहना को पर्सनली? डू यू नो आप पूनम पांडे से पर्सनली वाकिफ है? हमारी कभी दोस्ती नहीं हुई, एक दो इवेंट्स में मेरे ख्याल से हमने सिर्फ हेलो हाय कहा एक दूसरे से, दैट्स ऑल. एंड यू हैव नथिंग टू से अबाउट देम? नो, एज आई सेड अर्लियर, आई डोंट नो देम पर्सनली. वो किस तरह के इंसान हैं, उनके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, उनकी मानसिकता कैसी है. नो, आई डोंट नो. फेयर इनफ, या फेयर इनफ. ओके, सो पावरफुल बनना और सेक्सी बनना दोनों एक साथ कैसे बैलेंस करते हो आप? सोसाइटी ऑफन डिवाइड्स वुमेन इनटू आइदर इनटू यू नो. सेक्सी बनना और पावरफुल बनना, आई थिंक it's a very deadly combination. Yes. No? Yeah. So for me it's all to do with being true to oneself. So I think आप पावरफुल बनो तो ऑटोमेटिकली सेक्सी बन जाते हो. yeah, and what is sexiness at the end of the day? What is it? Yeah. Is it to do with the amount of skin that we reveal? Is it to do with the kind of clothes that we wear? I could be fully clothed and just do this and this and this. And still be sassy. So you see, sexiness is not about, ang pradarshan. Correct. It's a state of being. Correct. What do you think of yourself? I think of myself as nothing less than a goddess. Now that is sexy. That thought process is very sexy. So now I feel that I don't need to indulge in skin show to show how sexy I am. No. But I you can- are sexy. Yeah, हो it's a आप given. sexy It's a तो given. आप, yeah. Yeah. मैं नहीं बोलूँगी कि मैं तो सेक्सी नहीं हूँ जी, मैं तो अबला नारी हूँ जी. नो, मैं ना ही अबला नारी हूँ, ना ही मैं नॉन सेक्सी हूँ. मैं सेक्सी हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ और ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है. Now, how do I use it to my advantage? See, one cannot be sexy and not confident. Correct. One cannot be sexy and clueless about life. So when you say you're sexy, you're also saying that you know where exactly you are and where you intend to be. Correct. Correct? Sharon, you said you want to be a mother. आपको माँ You बनना है. addressed me by my sister's name. Sorry, I'm so sorry. I am so sorry. I love that name. Yeah, Sharon and you yes. also. Okay, Sherlyn, आप बताइए, आपको माँ बनना है, आपको you want to enjoy the motherhood, Yes. correct? बट आपको नहीं लगता जिस तरीके से हमारा ज़माना आगे बढ़ रहा है, टेक savvy हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिस हिसाब से ज़माना जा रहा है, you know, काफ़ी चीज़ें आजकल पसंद आती है इंस्टाग्राम पे when it is nude or it is sexy or if it is a very good content. और जो भी आपका past history रहा है, suddenly now you want to be spiritual, good for you, correct? I've लेकिन always wanted to be spiritual and I've always been fascinated with the universe. ये solar system, ये galaxies, कौन है जो इनको control करता है? The universe is so precise. साल में हमेशा 365 days होते हैं. 366 क्यों नहीं हो सकते? 364 क्यों नहीं हो सकते हैं? ये precision कहाँ से आता है? And कभी कभी ये सोचती हूँ कि अर्थ जो है वो हमेशा अपने ही ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व करता है? थोड़ा सा बाहर क्यों नहीं जाता? थोड़ा सा सन के करीब क्यों नहीं जाता? हमको जल्दी चाहिए क्या? अगर ऐसा होता तो हम तो भस्म हो जाते ना. हाँ. है कि नहीं? सो कहीं ना कहीं there is this precision, infinite precision which governs the universe. So that is very fascinating. ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है,
यूनिवर्सल इंटेलिजेंस है, ये डिवाइन है. सो इफ वी कैन कनेक्ट विद दैट डिविनिटी, देन वी कुड think like that divinity. So these thoughts fascinate me. मेरा ये पूछना था आपसे कि जब इफ़ यू इंशाल्लाह बिकम अ मदर, आप माँ बन जाओ, और अगर आप इफ़ यू आई डोंट नो इफ़ यू वुड लाइक अ बेबी बॉय और अ गर्ल, वट एवर यू विश मैं टू, यही सोच रही हूँ आजकल. तो इंशाल्लाह जो भी आपको हो. हाँ, आपको क्या लगता है? मैं तो चाहती हूँ भाई हर किसी को लड़की हो, और लड़कियाँ ही पैदा होती है आजकल. हाय, लोग मुझे मार देंगे. एनीवे, Very, कमिंग very, बैक, मेरे को very ये sweet. पूछना है कि बिकॉज नाउ यू डू नॉट फील कि जो भी है, जो भी था, नूडिटी, नंगापन, वो सब साइड में होना चाहिए, और ये डिवाइन कनेक्शन एक एकदम डिफरेंट चीज़ है, और यही सत्य है, और यही सच है, यू नो, इन अ वे. बट नाउ व्हेन यू विल हैव योर चाइल्ड, जब आपका बच्चा आएगा, एंड इट विल गो थ्रू ऑल योर हिस्ट्री एंड डिमांड फ्रीडम, देन व्हाट विल यू डू? फ्रीडम ऑफ दैट टाइप, विल यू टीच योर चाइल्ड? अपने एक्सपीरियंस से आप अपने बच्चे को सिखाओगे, और you will let be your child? I will bring up my child with such great values and principles that my child would not want to let go of dignity or respect. तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा मेरा बच्चा जो उसको डिग्निटी और रिस्पेक्ट से दूर लेकर जाए, और वो कहेगा या कहेगी कि मैं जो भी करूँगा या करूँगी, ऐसे करूँगी या ऐसे करूँगा जिसके चलते आपके नाम में मम्मा 4 चांद लग जाएं. या सो मैं चाह रही हूँ कि उस किस्म का औलाद मेरे घर पर पैदा हो, और या बड़ा मज़ा आएगा. यानी सोलफुल बातें हो. डेफिनेटली ट्विंस पैदा हो जाए यार आपके एक साथ, इंशाल्लाह. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. एंड देन 4 की जगह 8 चांद लग जाए ब्रो. या एंड कहीं ना कहीं जो खालीपन है मेरी ज़िंदगी में, जिसके चलते मैं हफ्ते में कम से कम 3-4 बार रोती हूँ, वो खालीपन मेरे ख्याल से भर जाएगा. एंड वो खालीपन किसी लड़के के प्यार से नहीं भर सकता है. लोग कहते हैं अच्छा खालीपन है तो बॉयफ्रेंड बना लो, शादी कर लो. आपको लगता है कि जो लोग शादीशुदा हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं? खिटपिट तो होती है हर घर में, लेकिन मैं जिस खालीपन की बात कर रही हूँ, एक लड़की में जब ममता की भावना पैदा हो, तो वो ममता वो किसको दिखाए? अपनी औलाद को दिखाए ना. वो ममता आप बॉयफ्रेंड्स पर या पुरुषों पर न्यौछावर करोगे तो आपको क्या मिलेगा बदले में? दुख, रुसवाई. हाँ, आई थिंक इट्स उससे ज़्यादा ये है रखने का एक्सेप्टेंस, और नहीं जाने का एक्सेप्टेंस जो हमको होता है. आई थिंक एक एक्सेप्टेंस है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे किसी के लाइफ में रहने का या नहीं रहने का. हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं बहुत ज़्यादातर कि अरे आई एम लोनली, आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट. अरे मेरा बॉयफ्रेंड है पर वो ऐसा है, आई एम अनेबल टू एक्सेप्ट. तो मुझे लगता है कभी कभी प्रॉब्लम अपने आप में होती है, तो उससे हम पेशेंटली जीत जाए तो मज़ा आ जाए. ऐसे मुझे लगता है. एंड आई फील जो हमारी अनकही बातें होती हैं, ख़ासतौर पर हम महिलाओं की, वो ये लड़के समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते हैं. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप किसे समझाना चाहते हैं बताओ, अभी समझाते हैं. नहीं, फॉर एग्जांपल यू नो ड्यूरिंग आवर पीरियड्स हमको बहुत ज़्यादा पेन होता है, तकलीफ़ होती है. अब उनको समझना चाहिए ना कि ओहो मैडम का पीरियड स्टार्ट हो गया तो इसका मतलब चिड़ी हुई होंगी, बहुत पेन में होंगी, चलो इनको पैम्पर करते हैं, गर्मा गर्म सूप पिलाते हैं या थोड़ा सा पैर दबाते हैं. नहीं, कुछ करते ही नहीं है. तो ऐसे में हमको चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, डू समथिंग, आई एम इन एक्सक्रूशिएटिंग पेन, पैम्पर मी. अरे ये समझने वाली बात होती है.
बट आई थिंक इट्स अबाउट एक्सेप्टेंस अगेन, क्योंकि हम जब हमारा फर्स्ट पीरियड आया था, मम्मी मस्ट हैव ट्रीटेड अस वेरी You see, स्पेशली. my father, who was a doctor, he pampered me so much, I tell you. Like, ऐसे सर को सहलाना, इट्स ओके इट्स ओके, आप सो जाओ, मैंने आपको गोली दी है, आप सो जाओ बेटा, और मैं सो जाती थी. अभी कोई नहीं करता है वो, ये जानते हुए कि हाँ चलो बंदी पेन में है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है इसको. नहीं, तो ये क्या है? ये इनसेंसिटिविटी है, ये इनडिफरेंस है, ये क्या है? अब आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन जैसे इफ फॉर मी, इफ अ बॉय, एक लड़का अगर मुझे प्रॉपर केयर नहीं दे सक रहा है व्हेन आई एम ऑन माय पीरियड, ओके, लेकिन एट द सेम टाइम वो किसी और तरीके से मेरी केयर कर रहा है, लेट गो ऑफ द सेंसिटिविटी. इट्स अबाउट सैक्रिफाइस एंड एक्सेप्टेंस, वरना फिर कैसे चलेगा, गड़बड़ हो जाएगा ना. मुझे ऐसे याद मुझे है लगता मैंने है. अपने एक फ्रेंड को कॉल किया था, अ फैमिली फ्रेंड. आई यूज टू फील वेरी गिडी ड्यूरिंग दोज डेज, एंड वन डे आई कॉल्ड, आई सेड, अच्छा सुनिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं एंड ही सेड, अच्छा ठीक है, गोली खा लो, आप ठीक हो जाओगे. ऐसे मुझे चक्कर आ रहे हैं और आपका बस यही रिस्पॉन्स है, आप गोली खा लो ठीक हो जाएंगे. से ठीक है मैं रखती हूँ. एंड दैट डे आई रियलाइज कि नो बाबा, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. किसी को नहीं पड़ता. एग्जैक्टली इट्स, मुझे लगता है लाइफ में, जेन्युइनली मुझे ये लगता है लाइफ में, अगर आप सिर्फ आपके माँ बाप है जिनको आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जिनको आपके लिए फ़र्क पड़ता है, बाकी का आपका एक्सपेक्टेशंस है किसी और से जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. क्योंकि माँ बाप से तो आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, और वो जेन्युइनली आपके लिए है, लेकिन आप सबसे तो वो नहीं वो कर सकते ना. वो भी किसी की औलाद है, वो भी किसी के एक्सपेक्टेशंस पे उतर रहा है. अगेन कमिंग फ्रॉम इंडिया, वैल्यूज, मॉरल्स, तो मुझे लगता है ज़्यादा किसी पे थोपना भी, इट्स लाइक ओके, यू नो, इट्स हमारा ही दिमाग खराब, मतलब हमारा ही दिमाग खराब हो जाता है ये चीज़ पे. एब्सोल्युटली, चुपचाप गोली खाओ, सो जाओ. सो जाओ, मत बोलो बर्दाश्त करो. चक्कर आ रहा है, किसी को और चक्कर आ जाएंगे, बस अपने माँ बाप के अलावा, मुझे ऐसा लगता है. बट अगेन ठीक है, काफ़ी लोगों का होता है, they would want to be pampered, and why not? It's a beautiful thing, but again you can't force and let go your mind crazy. Okay. माइंडसेट के लेवल पर आपको क्या रूटीन्स या हैबिट्स हेल्प करते हैं अपने आप को सेंटर्ड और स्ट्रांग बनाए रखने में? क्या हॉबीज? यस. आई लिसन टू प्रवचन किसके? every day. There's Joe Dispenza. सुबह उठते ही मैं उनके वीडियोस सुनना शुरू करती हूँ, अपना काम करते हुए, जिमिंग करते हुए, नाश्ता बनाते हुए. एंड इट्स लाइक रिमाइंडिंग माई सेल्फ एवरी डे अबाउट द लॉज ऑफ द यूनिवर्स and how am I to behave when things do not work in my favor. I self-drive. I don't like to, be driven all the time by my chauffeur. No. तो ड्राइविंग करते वक्त भी I listen to, self-help, motivational videos, audio videos. एंड अच्छा लगता है मुझे. लाइक सुबह शाम आप ख़ुद को याद दिला रहे हैं कि आपको कैसे बिहेव करना है, आपको क्या बनना है लाइफ में. लाइक फॉर इंस्टेंस ये जो टेबल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, जी. 2 into 2 4, 4 into 5 20, ये हमारे ज़ुबान पर कैसे चढ़े? क्योंकि हमने रट्टा मारा, रेपिटेशन. तो उसी तरह रोज़ाना अगर हम ख़ुद से ये कहें कि देखो, दुनिया चाहे जो भी कहे, जैसा भी बर्ताव करे, तुम्हें नहीं भूलना है कि तुम कौन हो. तो ये बातें हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं जाकर छप जाती हैं. सो दैट आई डू एवरी डे फॉर माई मेंटल हेल्थ. कॉन्स्टेंटली आप अपने आप को रिमाइंड करते हो. या एंड ऐसा नहीं है कि ये मोटिवेशनल वीडियोस सुनने से आप एकदम परफेक्ट हो जाते हैं. नहीं, फिर मेरे सामने कोई आता है, कोई मचमच करता है, मैं उसको 2 शब्द सुनाती हूँ, फिर मुझे लगता है नहीं 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 करना चाहिए था मुझे.
So it's a constant, trial and error method. And there are days when you feel like giving yourself shabashi, very good, बहुत अच्छा behave किया तुमने, very good, 10 on 10 marks. And there are days when you say to yourself, ये क्या कर दिया मैंने, ऊंची आवाज़ में लोगों को अपने दिल की भड़ास बताना, मतलब उन पर अपनी दिल की भड़ास निकालना और उनको गाली तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ ऐसी बातें सुनाना जिससे उनको ठेस पहुँचती हो. कभी कभी ऐसा हो जाता है जाने अनजाने में, व्हेन यू आर ऑन द वर्ज ऑफ एन इमोशनल ब्रेकडाउन, जब बहुत ज़्यादा हो रहा है, लाइक वर्कलोड है, ये है, वो है, ये डेडलाइन है, वो डेडलाइन है, घर में इंटीरियर का काम चल रहा है, प्लस आपको शूटिंग पर जाना है, प्लस आपको एज द ब्रेड विनर अपने सारे प्रोफेशनल कमिटमेंट्स निभाने हैं. आपको लगता है मैं करूँ तो क्या करूँ, एट द एंड ऑफ द डे आई एम जस्ट अ गर्ल. बट देन यू हैव टू अगेन collect yourself and compose yourself and remind yourself that yes, you can do it all because you're an all-rounder. आपके वर्स्ट गिल्ट क्या है शोलिन? क्या चीज़? वर्स्ट गिल्ट, आपका अच्छा. वर्स्ट गिल्ट क्या है? गिल्ट क्या हो सकता है? Worst skill I want to know about. I don't play mind games, so that makes my life less complicated. रही बात डिसिप्लिन की, वो तो भरपूर है. No, worst guilt of मैं वही decision. सोच रही हूँ कि जैसे guilt- or like you got into the streaming app could have been. अच्छा, that But way. again I will not say क्योंकि वो भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है और मुझे नहीं ना तब नहीं मालूम था कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है. correct. Worst Or guilt. the dinner dates which you didn't understand what a dinner date meant. Yeah, The but cockroach. that was my naivety, so ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, अगर किसी की मैंने जान ली हो तो शायद मैं रिग्रेट फील करती कि शिट, उसकी जान मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, या अगर मेरी वजह से कोई चल बसा तो मुझे बड़ा अफसोस होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो आप your decision guilt free in life. Yeah, because Fair I'm enough. very simple, straightforward. Fair enough. Yeah. It is how it should be. Okay, cool. Okay. आज की शर्लिन और 10 साल पहले की शर्लिन में क्या सबसे बड़ा फ़र्क है और कौन सी एक चीज़ है जो आप अपने यंगर सेल्फ को मिस करते हो? यंगर सेल्फ को कहना चाहते हो या? My younger self was more of a people pleaser, हाँ जी, and she was very confused, clueless about life, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, and she was very conscious of her looks. Conscious तो मैं आज भी हूँ looks को लेकर, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ठीक है, ये मैं हूँ, take it or leave it. And today I don't operate from rush energy. I don't like that energy. I like सुकून. That's my favorite word. घर पर सुकून चाहिए, गाड़ी में सुकून चाहिए, हर जगह सुकून चाहिए मुझे. At the place of work सुकून चाहिए. ये खिटपिट, ये restlessness, ये चिड़चिड़, no. I can't operate with that kind of energy. गाड़ी में भी अगर कोई ज़्यादा बातचीत करे मुझसे, मैं कहती हूँ प्लीज़ मैं ड्राइविंग कर रही हूँ, मुझसे बात मत करो. आपको एंटरटेनमेंट चाहिए, अपना फ़ोन चालू कीजिए, ईयरफोन लगाइए, एंजॉय कीजिए, मुझसे बात मत कीजिए. जब आप इतना कीप काम से काम हो, करेक्ट, then why there is so much nonsense? Exactly. My close friends who know the real me, they tell me often, they say, yaar, your public image is a far cry from your real image. खुद से घर का काम करती है, तो खुद से खाना बनाती है, ड्राइविंग भी कर लेती है, घर को साफ़ सुथरा रखती है, जिमिंग कर लेती है, हफ्ते में 4 से 5 बार. So
tedious, so clean, hygienic, disciplined, no time for gossip, no time for kirkiri. या एग्जैक्टली So जैसे मैंने then अभी नाम a लिया person गहना like का you should be amongst the top 10 in Bollywood, which is not the reality. Why not? Then I said, this is something that I would like to work on. यानी अंदर जो खूबियाँ भरी पड़ी हैं उन खूबियों को बाहर लेकर आना है, दर्शाना है Correct. और दिखाना है लोगों को कि देखिए आई एम मच मोर देन अ पिन अप गर्ल, आई एम मच मोर देन अ बॉम्बशेल. Of course. So, yes, I think it's high time that I portrayed my true inner self as my reality. मैं आज तक ख़ुद को ऐसे पेश कर रही थी जैसे कि लोग मुझको देखना चाह रहे थे या मीडिया देखना चाह रही थी. मैंने कई बार ये आजमा कर देखा, जब मैं कम कपड़े पहनती हूँ तो व्यूअरशिप ज़्यादा मिलती है और जब क्लासी लिबास पहनती हूँ तो व्यूअरशिप कम मिलती है. तो मैंने अपने दिमाग में ये कंक्लूजन बना लिया कि अच्छा, अगर हिट होना है तो अंग प्रदर्शन करो, छोटे छोटे कपड़े पहनो ताकि आईबॉल्स मिल सकें, व्यूअरशिप मिल सके. अब मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनको मीनिंगफुल बातें सुनना अच्छा लगता है, अब वो मेरी ऑडियंस बनेगी. ऐसे कई लोग हैं जिनको कुकिंग वीडियोस अच्छे लगते हैं. आई एम अ फैबुलस कुक और ये मैं गर्व से कहती हूँ. तो व्हाई नॉट डिस्प्ले माय कुकिंग स्किल्स, Definitely. मिलेगी Hot व्यूअरशिप. and hot. You're so naughty. Hot and तो hot. मतलब हॉट ड्रेसिंग करके कुकिंग Of course. कुकिंग करके मिर्ची बन के मिर्ची डाल हाँ के। मिर्ची बन के मिर्ची डालना मिर्ची है. Oh my god. You know what? I think I should befriend you and I have a strong feeling that I need a friend like you. Hey, sure. No, I'm seriously. your friend, bro. I get such nice positive vibes from you. शुक्रिया. नो, मेरे को नहीं, आपसे बात करके जेन्युइनली अच्छा लगा. जैसे मैंने गहना का नाम लिया आपसे, पूनम का नाम लिया, आपने बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया उस बात को. यू डिडंट. आपने राखी के बारे में 2-3 सवाल किए. मैंने कहा आपसे क्यों, क्योंकि हमारी मुलाकात हुई, लड़ाई झगड़े हुए, दोस्ती हुई, अनबन हुई, तो मैं कहीं ना कहीं जानती हूँ उनको. एंड आई फील ऑनेस्टली दैट शी इज़ अ गुड पर्सन. शी इज अ गुड. शी इज़ अ गुड पर्सन. होता क्या है, जाने अनजाने में वो ऐसा कुछ बोल देती हैं जो कंट्रोवर्शियल हो जाता है, Yeah. जिसके चलते आगे वाले को ठेस पहुंचती है. करेक्ट. Correct. तो जाने अनजाने में उसने मेरे बारे में ऐसी कई बातें कही जो एक महिला को एक महिला के लिए नहीं बोलना चाहिए. करेक्ट. हालांकि एकांत में बैठकर वो सोचती होगी कि यार ये तो नहीं बोलना चाहिए था उसके बारे में, गलत बोल दिया, लेकिन फिर मीडिया के सामने आकर बोलेगी कहाँ है खोपरा, कहाँ है मेरलिन खोपरा, कहाँ है. तो ये उसका प्यार जताने का तरीका है. बट मुझे लगता है राखी शायद अगर आपकी दोस्त होगी या जिसकी भी दोस्त होगी, वो ऐसी दोस्त होगी कि मतलब मुझे तो राखी जी कहना चाहिए, बिकॉज आई रियली थिंक शी इज अ फुल एंटरटेनमेंट. Absolutely. तो मुझे लगता है कि वो ऐसी दोस्त होगी कि हम मरने वाले हैं, राखी को फोन करेंगे, राखी विल कम. यस. And Of I course, think she is of that course. also for you and for anybody who she's friends with. वो हो जाता है ना कि vibe Yes, के अच्छा yes. she is that person she could be. She So nice. is what she claims to be. There is no दोगलापन, I would say. यानी अगर अंदर से वो नफरत करती है तो जुबान पर भी गाली ही होगी. Yeah. ये नहीं कि ओ सो स्वीट, आई लव यू, और मन ही मन भाग जा, दफा हो जा. पर आप लोग का जो उसकी शादी, उनकी शादी के वक्त चल रहा था, 2 दिन में अच्छी दोस्ती हो गई थी और 2 दिन में झगड़ा हो गया था, और बहुत बुरी तरीके से. Yeah. So, in such a scenario, it is best to maintain healthy distance. And अब क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि वो किस तरह की पर्सनालिटी हैं, तो मैं 10 कदम दूरी बनाए रखती हूँ ताकि नोक झोंक ना हो, खिटपिट ना हो.
दूर से सलाम दुआ करना अच्छा लगता है. Okay, okay. Let's get to our rapid Yes. fire round. बोलनेस या इंटेलिजेंस, अगर सिर्फ एक चूज करना हो तो? Hands down, intelligence. Okay. एक चीज जिसके लिए आपको लोगों ने बहुत मिसअंडरस्टैंड किया? Boldness की वजह से. Okay. If an actor, what would you be? CEO, writer या politician? If not an actor. Politician. Politician? Yeah. You like to be a politician? आपको क्या लगता है मुझ में क्षमता है? मेरे को क्या मालूम अब. अरे मेरे दोस्त के नाते आपको क्या लगता है? पॉलिटिशियन बनने का. राइटर बन जाओ. कॉटन साड़ी पहनना शुरू करूंगी. ठीक है. अब बन जाओ भाई. आप कुछ भी बन सकते हैं. आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट योर माइंड. व्हाई नॉट? एंड बालों को ऐसे ऐसे पूरा पिन अप कर दूंगी, पोनी टेल या जोड़ा और बड़ी बिंदी. फॉर अ चेंज पॉलिटिशियन भी बन के देख लेते हैं. ओके. वन वर्ड फॉर बॉलीवुड. ड्रामा, बिजनेस या ड्रीम? ड्रामा, बिजनेस या ड्रीम? बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड हार्डकोर बिजनेस है. बिजनेस. बिगेस्ट टर्न ऑन, कॉन्फिडेंस, काइंडनेस या एम्बिशन? काइंडनेस, एनी डे एनी टाइम. यानी या यू कुड बी अ बिलियनर. क्योंकि इन तीनों में से मेरा चॉइस इसमें यहाँ नहीं है. हाँ. बिगेस्ट टर्न ऑन. सो दैट्स व्हाई. No, but कॉन्फिडेंस. amongst these three options, I would choose kindness. Really? Can you handle an asshole? No, but let's say sir is very kind. Would you choose him? Sir? Yeah. या अच्छा ये वाले sir? जी. Anybody, they all seem very kind. I could have a cup of coffee with him. Yeah? Yeah. But it's about your spouse, could be. अच्छा spouse की बात हो रही है. पूछिए Biggest कैसे? turn on. पूछिए सवाल फिर से पूछिए क्योंकि spouse की बात हो रही है. Okay, biggest turn on. Now, when do you have a turn on usually? Turn on. You mean to say For a man, when you meet, or you are thinking about it, हाँ. what is कि your turn on? कुछ कुछ कब होता है? Yeah. हाँ बताइए options. It's confidence, kindness या ambition. मेरा choice तो यहाँ पे है नहीं, but Confidence, kindness या ambition. अगर मेरे spouse में ambition ना हो तो फिर मज़ा नहीं आएगा. ambition. Again, kindness ना हो तो मज़ा नहीं आएगा. Confidence ना हो तभी मज़ा नहीं आएगा. तो ये तीनों चाहिए मुझे. तीनों चाहिए. हाँ. But if you have to choose one. Why choose only one? मेरे spouse में ये सब होगा. होगा. हाँ. So, okay, let's take it ambition, then everything falls apart. Ambition के साथ kindness भी क्योंकि I have met people who सब have नहीं who have मिलता ना all. शर्लिन, सब नहीं मिलता. ऐसा कैसा मिल जाता? अच्छा देखो अगर कोई बहुत धनवान हो, हाँ दुनिया भर का पैसा है लेकिन बात करने की तमीज़ नहीं है तो क्या करूँ मैं उसके साथ? मगर अब फिर नहीं मिल सकता ना पूरा. तो देखो बात करने की तमीज़ हो, उसमें अदब हो, यानी अच्छी एजुकेशन हो, परवरिश अच्छी हो, अपब्रिंगिंग, एंड एट द सेम टाइम वो एम्बिशियस भी हो, यू नो. ओके, सो आई विल जस्ट चूज एम्बिशन देन. ऐसा पूरा नहीं मिलता. अब सब मिला क्या लाइफ में? आपको नहीं मिला ना, मेरे को भी नहीं मिला. सो सब नहीं मिलता. ऐसा नहीं होता. नहीं ऐसे बातें नको करो, एक चूज करो. सब मिलता जी. वेट करो तो मिलता. अच्छा ठीक है, सब्र रख लेंगे. हाँ. फिर अपन. सो ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच शर्लिन फॉर. नहीं जाना इतनी जल्दी. अब जाना पड़ता है ना, नहीं. लेट हो गया. अच्छा हैम्पर वैम्पर दे देते आपको भाई. हैम्पर मंगाओ शर्लिन का. अच्छा हैम्पर देने से पहले एक राउंड होता है ना? गिफ्ट हैम्पर नहीं, गिफ्ट हैम्पर देने से पहले आपको फास्ट फास्ट क्वेश्चंस करने चाहिए और मुझे फास्ट फास्ट जवाब देने चाहिए. अरे वो Rapid यही fire था. round. वो यही था. हाँ, हाँ, इतना बोलने हल्लू से हल्लू हम कर रहे थे. अरे नहीं, वो यही था. ये रैपिड फायर नहीं था. अरे अब आई नो थोड़ा. ये हल्लू हल्लू था. ये हल्लू ही करते भाई हम लोग. अब आप भी सीधे हो जा रहे बोल के, हमला भी सीधा सीधा. हमला भी सीधा सीधा. सो वी हैव सम ब्यूटीफुल गिफ्ट हैम्पर फॉर यू. हाँ, दिखाइए. फ्रॉम वाओ Alpha Talk. वाओ.
कितना बड़ा है ये. Yay! I hope you like it and let's I talk love soon it. again. So definitely, inshallah, thank you so much for coming on Alpha Talk. And Can I hit you? Can I hit you? क्या नहीं, को? ऐसे प्यार से, प्यार sure. मोहब्बत से, ऐसे ऐसे. Sure, sure. Thank you so much, Sherlyn. Thank you. And Thank you. That was it with Sherlyn Chopra. ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे. आगे बोलो. तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे. सच में मुझे नहीं मालूम था कि इस तरह की बॉन्डिंग होगी आपके साथ. Thank you. What zodiac sign are you? Saji. Saji. Okay. Sajis get along very well with Aquarians and vice versa, I guess. आप वो हैदराबादी गाना सुने? कौन सा? इंस्टा के रील्स पे तो मौत डाल दे रहे, बोलो ट्रांजिशन गिंजिशन आखिरी बना रहे, बोलो दिल लगा जी तुम पे कार रहे थे, बोलो खाली. It's a हैदराबादी गाना. ओहो. Thank you. It's a rap. So I just wanted to